I am Dr. Swati Sharma from University of Delhi, DRC College. So today in the microbiology class, we would be studying about conjugation, transformation and transduction in the microbes. So these are the fascinating mechanisms of the horizontal gene transfer that drives the microbial evolution and adaptation in the unseen microscopic world. Before we start to understand these mechanisms, we need to understand first the microbial genetic exchange. So how microbes exchange their genetic material. First method is the vertical gene transfer, which involve the binary fission. Most of the microbes, they are single cell organism and they reproduce by splitting into two halves. So for doing it, they have to duplicate the DNA material in them and then divide the DNA material along with the cytoplasm into two daughter cells. So these two daughter cells are called identical clones. They create genetically uniform population through the simple process of the cell division. This process of cell division is also known as vertical gene transfer. This process is responsible for the transfer of the genetic material from one generation to the another. But this does not enable them the adaptation or the evolution, because in the bacteria or in the microbes there is no recombination. So genetic variation cannot occur. So how does this genetic variation or rapid adaptation happen? This happens by the way of horizontal gene transfer, or also known as HGT. Horizontal gene transfer serve as the first primary mechanism for introducing the genetic variation into the bacterial population. It also enables the bacteria or the microbes to quickly acquire new traits such as antibiotic resistance and to adapt to the environmental pressures and challenges such as changing in the environmental pH or the temperature. So this horizontal gene transfer is very important. आप देखेंगे कि अब जितने भी न्यू माइक्रोब्स आ रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए क्योंकि न्यू बैक्टीरिया दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये सब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की वजह से एक बैक्टीरिया अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है, फिर वो दूसरा बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है. तो जो प्रेजेंट एंटीबायोटिक है वो अब दोनों बैक्टीरिया पे काम नहीं करेंगी. एंड अनलाइक हायर ऑर्गेनिज्म that rely on the sexual reproduction for the genetic diversity, bacteria or the microbes, they have evolved sophisticated mechanism to exchange genetic material horizontally. And for HGT, which is horizontal gene transfer, there are three fundamental ways. First is conjugation, second is transformation, and third is transduction. And all of them represent the nature's indigenous solution for the microbial survival and evolution. Without these horizontal gene transfer technique, it would be very difficult for the microbes to survive the ever-changing conditions or evolve in a way which can survive the new antibiotics or new pressing environmental conditions. So why these genetic variations matter in the microscopic world and why it is important for their survival under the stress? माइक्रोब्स को या बैक्टीरियाज को क्यों हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र करना है, क्यों उनको रैपिड अडेप्टेशन चाहिए या क्यों उनको इवॉल्व होना है? ताकि वो इम्यून सिस्टम के अटैक से बच सकें. हर स्पीशीज़ अपना सर्वाइवल चाहती है, चाहे वो बड़े से बड़ा जानवर हो या छोटे से छोटा माइक्रोब. तो उस सर्वाइवल के लिए जितने भी चेंजिंग कंडीशंस हैं उसके लिए अडेप्टेशन ज़रूरी है, और वो अडेप्टेशन सडन होना चाहिए. आप एक जनरेशन के लिए वेट नहीं कर सकते कि पूरी जनरेशन अडेप्ट करेगी. तो इसलिए माइक्रोब्स ने एक वे आउट निकाला. इंस्टेड ऑफ वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र दे अंडरगो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. सो दीज जेनेटिक वेरिएशन बाय हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र दे enables bacteria or other smaller microbes to withstand the harsh conditions, which includes the antibiotic treatment such as penicillin, ampicillin or erythromycin. Immune system attacks from the host. For example, bacteria or microbes, they only divide in or survive in the host. So the host would like to remove them.
और उन होस्ट कैसे रिमूव करेगा? अपने इम्यून सिस्टम अटैक से। सो ये जेनेटिक वेरिएशन उनको एनेबल करती है कि वो इस इम्यून सिस्टम अटैक को इवेट कर सके या इससे बच सके। एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल शिफ्ट्स सच एज टेम्परेचर changes or nutrient deficiency or scarcity. So how these things evolve? First is resistance evolution. The rapid development of the antibiotic resistance and enhanced pathogenicity directly results from the horizontal gene transfer, creating superbugs that challenges the modern medicine. So superbugs are the class of the bacteria or the microbes which are resistant to wide array of antibiotics. तो मतलब जो बैक्टीरिया बहुत सारी तरीके के एंटीबायोटिक यूज़ होने के बाद भी नहीं मरते, उनको हम सुपर बग्स बोलते हैं। और ये सुपर बग्स कैसे आए? जब हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का, तो क्या हुआ? तो जो सर्वाइविंग बैक्टीरिया थे उन्होंने जीन डेवलप की उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के लिए। और जैसे ही उस बैक्टीरिया ने वो जीन डेवलप की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, उसने अपने साथ वाले बैक्टीरिया को वो जीन ट्रांसफ़र कर दी थ्रू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। और ऐसे ही साथ वाले ने और साथ वाले बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दी, और इस तरीके से पूरी पॉपुलेशन में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई। तो अब वो पूरी पॉपुलेशन ना पेनिसिलिन से मरेगी, ना एम्पिसिलिन से मरेगी, ना कैनामाइसिन से मरेगी, और ना एरिथ्रोमाइसिन से मरेगी। तो क्या होगा? एक सुपर बग बैक्टीरिया की इमरजेंस होगी जिसपे कोई भी एंटीबायोटिक एक्ट नहीं कर रही। इसलिए आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी कोल्ड या कॉफ होता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एकदम एंटीबायोटिक स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके गट में भी जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, और फिर वो एंटीबायोटिक एक समय के बाद आप पर असर करना बंद कर देगी। इसलिए क्लिनिशियंस और डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम से कम होना चाहिए। एंड सेकेंड इज़ ट्रेट डिसेमिनेशन। ट्रेट डिसेमिनेशन का मतलब क्या है? कि मेरे अंदर कोई एक अच्छी आदत है, वो मैं दूसरों में भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अगर एक बैक्टीरिया के पास कोई अच्छा या यूज़फुल करैक्टर या ट्रेट है, तो वो बाकी बैक्टीरियाज में भी वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस फीचर को क्या बोलते हैं? ट्रेट डिसेमिनेशन। So this is a beneficial characteristic which spread quickly through bacterial communities, allowing the entire population to acquire advantageous properties within short time frames. तो पूरी की पूरी बैक्टीरियल पॉपुलेशन में वो एक एडवांटेजेस ट्रेट आ सकता है। तो वो ट्रेट क्या हो सकता है? वो ट्रेट बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है। या तो बैक्टीरिया एक नए तरीके का मेटाबोलाइट या कार्बन सोर्स यूज़ कर पा रहा है। तो पहले फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया सिर्फ ग्लूकोज पे सर्वाइव कर रहा था, बट अब एक बैक्टीरिया के पास ट्रेट है कि वो फ्रक्टोज को भी एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकता है, और उसने वो ट्रेट बाकी बैक्टीरियाज को ट्रांसफ़र किया। तो अब सारे बैक्टीरियाज ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। तो वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तब भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ? एक बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक उनमें ऐड हुआ। सो दीज आर द टू थिंग्स, रेजिस्टेंस एवोल्यूशन एंड trait dissemination, which are done by horizontal gene transfer. Now I told you that there are different ways of horizontal gene transfer which we would be dealing today, and these three ways are: first, your transformation, transfection and conjugation. But इन सबको पढ़ने से पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों तरीक़ों में अपटेक ऑफ फ्री डीएनए ही हो रहा है। तो पहले इस वर्ड की डेफिनेशन समझते हैं एंड हिस्टोरिकल डिस्कवरी समझते हैं कि कैसे हुई थी, देन वी विल अंडरगो ऑल दीज थ्री टर्म्स। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली द अपटेक ऑफ फ्री डीएनए, एंड हाउ इट वाज डिस्कवर्ड? It was discovered by a groundbreaking discovery or experiment by Frederick Griffith in 1928. He conducted his experiments in Streptococcus pneumoniae. So Streptococcus pneumoniae is a bacteria which cause pneumonia, and he first revealed transformation. So उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डेड बैक्टीरिया, एक लाइव बैक्टीरिया यूज़ किया, एक डेड बैक्टीरिया यूज़ किया, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव और डेड बैक्टीरिया यूज़ किया, और उसको माइस में ट्रांसफ़र किया और देखा कि क्या होता है। So his work demonstrated that dead bacteria could somehow transfer characteristic to the living bacteria, and it
revolutionized the understanding of the genetic material. So this is the experiment which was done by the Griffith. So he took two different strains of the bacteria, okay, and he injected them in the mice. So one strain was the R strain. When he took the live R strain and injected in the mice, all the mice survived, no death happened. When he took the S strain and he injected them in the mice died, none of the mice survived. When he heat killed the S strain and injected it in the mice, eventually all the mice survived. So he said that heating the strain destroys something which was killing the mice, and mice survived. But when he used a combination of the live R, which was not killing mice at all, and the dead S strain, which was again not killing the mice at all, and when he combined those two and injected them in the mice died. It showed that something from the healed kid S strain was getting transferred into the live R strain, which was killing the mice. Then he also gave a term which is called competent cells. He realized that only competent bacteria or the cells which have permeable cell membrane can successfully uptake the environmental DNA. This competence occur naturally under specific conditions or can be artificially induced. So उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब हमने दो कॉम्बिनेशन लिया, जब हमने लाइव आर लिया और हीट किल्ड एस लिया, तो हीट किल्ड एस में से कुछ तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो लाइव आर ने अपटेक कर लिया, बट सारे के सारे लाइव आर सेल्स वो अपटेक नहीं कर पाए. जो सेल्स अपटेक कर पाए उन सेल्स को हम कॉम्पिटेंट सेल्स बोलते हैं. कॉम्पिटेंट मतलब उनमें ये पावर है कि वो एक्सटर्नल डीएनए ले सकते हैं. तो कॉम्पिटेंट सेल्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो नेचुरली प्रेजेंट है जैसे कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के केस में हुआ कि कुछ सेल्स कॉम्पिटेंट ऑलरेडी थे, या हम आर्टिफिशियली लैब में भी कॉम्पिटेंट सेल्स बना सकते हैं. उसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसा कि हम इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम हीट शॉक मेथड यूज़ कर सकते हैं सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए. सो दिस वाज द फाइनल कंक्लूजन that naked DNA fragments which were floating in the environment can originate from the lysed bacteria. So there was DNA fragment which was actually responsible for the death of the mice. They actually originated from the lysed bacteria, मतलब जो बैक्टीरिया मर चुका था हीट से, and it released plasmid, जो भी DNA का मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल था माइस की डेथ के लिए उसने वो रिलीज किया, और आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल इन द लेबोरेटरी सेटिंग. और फिर क्या हुआ, लेबोरेटरी सेटिंग में जो आर स्ट्रेन था उसने वो अपटेक कर लिया, और जब उसको माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो गई. इससे पता चलता है कि बैक्टीरियल सेल में ये कैपेसिटी है कि वो जो बाहर डीएनए प्रेजेंट है उसको अपटेक कर सके. तो अब हम नेक्स्ट उस पर आगे बढ़ते हैं. तीनों प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की. फर्स्ट प्रोसेस है कॉन्जुगेशन. ये सबसे सिंपल प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, इसमें एक डोनर सेल होता है, ये यूजुअली बैक्टीरियाज में ही होता है, और जो डोनर सेल होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट सर्कुलर डीएनए होता है. इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि वो अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है. तो डोनर सेल को हम F पॉजिटिव सेल भी बोलते हैं या F सेल भी बोलते हैं. सॉरी, F पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो प्लाज्मिड को हम F प्लाज्मिड बोलते हैं. तो जिस भी सेल में F प्लाज्मिड होगा उसको हमेशा F प्लस के साइन से डिनोट किया जाएगा, ये दिखाने के लिए कि वो डोनर सेल है. तो डोनर सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना F प्लाज्मिड बाकी सेल्स को भी डोनेट कर सके. बट जब वो F प्लाज्मिड डोनेट करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि F प्लाज्मिड उसमें नहीं रहेगा. इसका मतलब ये है कि F प्लाज्मिड की एक और कॉपी बनेगी दूसरे सेल के अंदर. तो जो दूसरा सेल होता है, क्योंकि वो F प्लाज्मिड ले रहा है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट सेल. और वो ले रहा है इसलिए क्योंकि उसमें पहले से F प्लाज्मिड नहीं है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, F माइनस के साइन से. अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे डोनर प्लाज्मिड लिखा है और उसको लिखा है F प्लस,
और राइट साइड पे लिखा है रिसिपिएंट प्लाज्मिड और उसको लिखा है F-। ये दिखाने के लिए कि एक में F प्लाज्मिड है, जो कि आप ऑरेंज कलर का सर्कुलर डीएनए देख सकते हो, और दूसरे में F प्लाज्मिड नहीं है। तो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस शुरू कैसे होता है? कॉन्जुगेशन का प्रोसेस शुरू होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द पाइलस। डोनर प्लाज्मिड में एक पाइलस की फॉर्मेशन होती है। पाइलस उसकी सेल मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है जो बड़ा होके रिसिपिएंट प्लाज्मिड के साथ जुड़ता है। पाइलस की वजह से दोनों डोनर प्लाज्मिड और द रिसिपिएंट प्लाज्मिड दे कम क्लोज टुगेदर, ये दोनों पास आते हैं। फिर जो F प्लाज्मिड है वो अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। F प्लाज्मिड में से एक सिंगल, क्योंकि जो प्लाज्मिड है वो सर्कुलर डीएनए है, तो पहले उसमें एक कट फॉर्म होता है और एक स्ट्रैंड रिसिपिएंट प्लाज्मिड में मूव होता है। फिर जैसे ही एक स्ट्रैंड मूव होता है उसका रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि इन प्लाज्मिड में एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं और आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन शुरू होता है और रिसिपिएंट सेल में भी एक पूरा प्लाज्मिड बन जाता है। और जैसे ही कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है दोनों सेल के पास F प्लाज्मिड होता है, तो अब दोनों सेल को F प्लाज्मिड बोलते हैं। तो जो ओरिजिनल डोनर सेल होता है जिसमें पहले से F प्लाज्मिड है वो ओरिजिनल डोनर कहलाता है, और जो रिसिपिएंट होता है वो भी F पॉजिटिव सेल बन जाता है। तो इस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के बाद अब हमारे पास एक की जगह दो सेल्स हो जाते हैं जिनके पास F प्लाज्मिड है। अब इन दोनों के पास F प्लाज्मिड है तो ये दोनों ही कैपेबिलिटी रखते हैं पाइलस फॉर्म करने की और अपने साथ वाले बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करने की। तो आप देखेंगे कि कैसे 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल्स में F प्लाज्मिड आ सकता है। तो दिस इज़ एक्सपोनेंशियल, इसलिए हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवोल्यूशन में। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का दूसरा मैकेनिज्म है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपने अभी पहला प्रोसेस देखा उसमें 2 बैक्टीरियल सेल्स इन्वॉल्व थे। ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरियोफाज सेल इन्वॉल्व है। इसमें क्या होगा? इसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो बैक्टीरिया कैरी नहीं करता, वो बैक्टीरियोफाज कैरी कर रहा है। आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं डोनर बैक्टीरिया सेल का लाइसिस हुआ है, तो इसमें क्या हुआ? डीएनए फ्रेगमेंट्स रिलीज़ हुई। तो जितनी भी डीएनए फ्रेगमेंट रिलीज़ हुई वो फ्रेगमेंट्स क्या हुई? दूसरे बैक्टीरिया सेल से अपटेक कर ली। पर अब ये वही बैक्टीरियल सेल अपटेक कर पाएगा जो कॉम्पिटेंट होगा। जो बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट नहीं होगा वो ये रिलीज डीएनए फ्रेगमेंट अपटेक नहीं कर पाएगा। जैसे ही कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल डीएनए फ्रेगमेंट अपटेक करेगा ये डीएनए फ्रेगमेंट जाके क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाएंगी और सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो ये तरीका है यूजुअली फॉर ट्रेट डिसएमिनेशन। अभी आपने जैसे पहले ध्यान दिया होगा कि हम बात कर रहे थे कि जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है वो एक नया ट्रेट भी दे सकती है। तो वो नया ट्रेट कैसे देती है? वो नया ट्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से देती है, क्योंकि जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट है जो लाइज्ड है ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी कैरी कर रहे होंगे। तो जैसे ही ये डीएनए फ्रेगमेंट दूसरे सेल के जीनोम में इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी ये प्रॉपर्टी इनके पास थी ये प्रॉपर्टी वो उस सेल को दे देंगे, तो उस सेल के पास कोई भी नया फीचर आ जाएगा। और लास्ट प्रोसेस है हमारा ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जो बैक्टीरियल सेल है वो इन्फेक्ट होता है एक वायरस से और वायरल डीएनए इंटीग्रेट करता है बैक्टीरियल सेल में। और इसकी 2 साइकिल्स हो सकती हैं, या तो लाइसिक और लाइटिक जिसमें बैक्टीरियल सेल बर्स्ट हो जाता है, या लाइसोजेनिक जिसमें डीएनए अंदर ही अंदर डिवाइड होता रहता है और बाद में बर्स्ट होता है। तो ट्रांसडक्शन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, एक वायरल डीएनए और दूसरा बैक्टीरियल डीएनए। वायरल in the form of bacteriophage will infect the bacterial cell and then it will integrate the DNA into the host chromosome, and the host chromosome will multiply that DNA either in the lysogenic cycle or it will further lyse to release all these viral DNA into the external
सराउंडिंग। तो इसी के साथ अभी हमने 3 चीज़ें समझी। वो 3 चीज़ें क्या हैं? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन। अब हम इन्हीं को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एक सेल से दूसरे सेल में ये जेनेटिक मटेरियल जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और बैक्टीरिया को एनेबल करता है कि वो बेटर कंडीशंस में या वर्स कंडीशंस में अडेप्ट करके सर्वाइव कर सके और अपनी साइकिल पूरी कर सके। बट हमें ये याद रखना है कि ये फीचर्स सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स ये फीचर्स या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र फॉलो नहीं करते। हायर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है और सिर्फ वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र होता है। तो HGT विच इज़ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र is exclusive property of the microorganisms. So इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे with the transformation और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि क्या क्या इन्वॉल्व है। एक बैक्टीरियोफाज, सी वायरसेस के बहुत डिफरेंट टाइप होता है, वायरस, वायरॉइड एंड बैक्टीरियोफाज। सो बैक्टीरियोफाज की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, टेल एंड अटैचिंग पार्ट। तो जो टेल है वो बैक्टीरिया पे अटैच करती है और जो हेड में है वो सारा उसका जीनोमिक मटेरियल होता है या DNA और RNA होता है। वो टेल के थ्रू फिर जितना भी पैकेट सामान है हेड में वो पास होता है जीनोम में और फिर वो बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करता है। तो ट्रांसडक्शन में क्या होगा? or infection of the bacterial cell by the bacteriophage, and this bacteriophage can have several different genes which enables bacteria with the new properties. Okay, and the transformed cell would be different from the non-transformed cell, or we can say that transfected cell would be different. See, जब ट्रांसडक्शन होता है तो जो सेल बनता है उसको हम ट्रांसफेक्टेड सेल बोलते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है ट्रांसफेक्टेड सेल। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो नए सेल को हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलते हैं और जब कॉन्जुगेशन होता है तो नए सेल को भी हम F पॉजिटिव सेल बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ याद रखना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में सेम चीज़ हो रही है कि नेकेड DNA इंटीग्रेट हो रहा है, बट दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है। एक में रिलीज्ड DNA फ्रेगमेंट का अपटेक है और एक में अपटेक बाय इन्फेक्शन है। तो आगे की स्लाइड समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि दोनों की टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो जब बैक्टीरियोफाज यूज़ होता है तो वो मल्टीपल कॉपीज़ भी बनाता है अपनी, और जब वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वायरल DNA पैक हो हेड में। जब सेल, जो भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो रेप्लिकेट कर रहा है तो उसकी पैकेजिंग में भी मिस्टेक हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई बैक्टीरियल जीन पैकेज हो जाए बैक्टीरियोफाज के हेड में, और जब ऐसा होता है कि बैक्टीरिया की जीन्स बैक्टीरियोफाज के हेड में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वायरल के पास भी न्यू प्रॉपर्टीज़ आती हैं। और हमने अभी कोविड के केस में देखा ही है कि वायरल में म्यूटेशन कितना फास्ट था, कभी डेल्टा वेरिएंट है, कभी ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो ये सब वेरिएंट्स कैसे आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में और स्मॉलर माइक्रोब्स में? ये सब वेरिएंट्स हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की वजह से आते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ बैक्टीरियल जीन्स या होस्ट जीनोम, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड का होस्ट था ह्यूमन, तो ह्यूमन जीन्स भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अब आगे हम चलते हैं प्रोसेस पे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।